Hello students, I hope all you are safe at your home and following all the instructions given by the government. Now in my previous video, we had completed our first chapter, Fundamental of Partnership Account, and today I am going to start a new chapter, that is Goodwill, Valuation and its concept. It's very important chapter. It's a part of our next chapter, that is an admission of a partner. And this topic is not only important for the admission, but this topic is also important for the admission of a partner, retirement of a partner and a death of a partner. So let's discuss this important topic before we start a chapter, admission of a new partner. So the topic is Goodwill, Valuation and its concept. So the topic is Goodwill, concept and valuation. Under this topic, we have to discuss first meaning of goodwill, definition of goodwill, need for valuing goodwill, factors affecting the value of goodwill, classification of goodwill, method of valuation of goodwill. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6 topics are there which we have to discuss from this chapter. Now goodwill already we had learned in class 11th also. In class 11th you had learned that goodwill means that is a good name or the reputation earned by the firm through the hard work and the honesty of the owner. जब हम अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं तो हमारा बिजनेस क्या होता है, डेवलप करता है, ग्रो करता है और उसको देखते हुए हमारी जो बिजनेस की पॉपुलैरिटी है वो एनवायरनमेंट पे बढ़ती है. तो उस चीज को हम लोग कहते हैं गुडविल. गुडविल यानी कि गुड नेम. तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन earned by the firm through the hard work and the honesty of its owner. If a firm render goods and services to the customer who feels satisfied will come again and again and the firm will be able to earn more profit in the future. तो जब हमारा रेपुटेशन मार्केट में अच्छा होगा तो होगा क्या, हमारे कस्टमर हमारे पास बार बार आएंगे. जब बार बार आएंगे तो हमारी प्रॉफिट भी होगी ज़्यादा और इस वजह से हमारे फर्म का नाम क्या होगा, वो बढ़ेगा और इसी को हम लोग कहते हैं गुडविल. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गुडविल. नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ गुडविल. समटाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2 marks क्वेश्चन दिस क्वेश्चन आस्क कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, डिफाइन गुडविल. डिफाइन गुडविल, डेफिनेशन ऑफ गुडविल. तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले, मैं लॉर्ड लिंडले का डेफिनेशन ले लेती हूं. लिंडले, गुडविल इज नथिंग, गुडविल इज नथिंग more than profitability then the old customer will resort to the old place. जब आपका कस्टमर बार बार आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब क्या, आपने उनके ऊपर अपना गुड नेम और फेम बना लिया है. तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लिंडले सेज दैट कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी देन द ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू द प्लेस. सो दिस इज अ रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस. So this is the definition of goodwill. So firstly we had discussed the meaning of goodwill, then we had discussed definition of goodwill. Now the next topic, that is a characteristics of goodwill. Characteristics, or we can say features of goodwill. So this is very important topic. Characteristic or features of goodwill.
This is very important question, and usually in board examination this also asks. So if we will write 2 features and explain it very nicely, so we can get 2 marks. So what are the characteristics of the feature comes under this heading. The first feature जो कि हमने पिछले साल 11th में भी पढ़ा हुआ है कि पहला तो गुडविल क्या है, गुडविल एक फिक्स एसेट है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट. तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस एसेट गुडविल, दैट इज इट इज एन इनटैंजिबल, it is an intangible asset. अब इसको intangible asset क्यों कहते हैं? This we had already discussed in my previous class कि गुडविल को इंटैंजिबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, नाइदर बी सी नॉर बी टच. सो गुडविल बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ इंटैंजिबल एसेट, जैसे हमने पेटेंट्स के बारे में, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे हैं, क्योंकि इट डज नॉट सफर वियर टियर एंड सच द क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज ऑन इट्स एज इन द केस ऑफ अदर एसेट. इनको ना तो हम तोड़ सकते हैं ना मरोड़ सकते हैं, इनको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो इसलिए इसमें कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं होता है इस एसेट पे, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इंटैंजिबल एसेट. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, it is valuable asset. It is valuable asset. Why it is valuable asset? Because it is measured in the terms of money, and that is why it is a valuable asset. Third feature, it helpful in earning. It helpful in earning excess profit. अब मेरा कस्टमर बार बार ही मेरे पास आ रहा है सामान लेने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ही इज सेटिस्फाइड बिकॉज वी आर विद द लॉयल्टी एंड विद द ऑनेस्टी वी आर सर्विंग द बेस्ट ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. सो डेफिनेटली अगर मैं अपने कस्टमर को बेहतरीन गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हूँ तो वो कस्टमर किसी और के पास नहीं जाएगा. द कस्टमर ऑलवेज कम्स टू यू, एंड दिस वे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट को एक्सेस कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट. सो द अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल इज व्हाट? इट हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. फोर्थ वन, इट इज वैल्यूबल ओनली, it is valuable only when entire business sold. अब now how it is valuable when entire business is sold? देखो, goodwill cannot be sold in a part. किसी भी assets को हम लोग, मशीन को या किसी लैंड को या फिर किसी प्लांट को हम पार्ट वाइज सोल्ड कर सकते हैं, फर्नीचर को हम पार्ट वाइज सोल्ड कर सकते हैं, लेकिन गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट. इट कैन बी सोल्ड विद द इंटायर बिजनेस ओनली. सो द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. सो द ओनली एक्सेप्शन इज एट द टाइम एडमिशन और द रिटायरमेंट. इसी समय हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं कर सकते. तो हमारा गुडविल जो है वो पूरे बिजनेस के साथ सोल्ड होता है, नॉट इन अ पार्ट वाइज. सो आई डिस्कस 1, 2, 3, 4 फीचर्स. पहला फीचर मैंने डिस्कस किया कि इट इज एन इंटैंजिबल एसेट. सेकेंड फीचर आई डिस्कस इट इज अ वैल्यूबल एसेट. थर्ड फीचर, इट हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट. इट इज वैल्यूबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड. लेट मी डिस्कस वन मोर फीचर्स. तो 5 पॉइंट हो जाएंगे. तो इन एग्जामिनेशन यू कैन राइट 3 or 4 पॉइंट, और यू कैन एंड यू कैन एक्सप्लेन. सो फिफ्थ we can take it is difficult to place. It is difficult to place an exact value on goodwill. Now this is because
इट्स वैल्यू में फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय के अकॉर्डिंगली इस गुडविल हमारी क्या हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है. सो दिस इज बिकॉज इट इज its value may be fluctuate from time to time due to changing circumstances which are internal or external business. Like हमारा कॉमर्स में जो पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, बिजनेस में पड़ता है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से. सो दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल. सो टोटल 5 points you prepared under this topic, characteristics or the features of goodwill. Now the second last topic of this chapter is method of valuation of goodwill. So this is a numerical part from this chapter. So what are the different methods come under the head valuation of goodwill? The first is average profit method, then super profit method, capitalization of average profit method, capitalization of super profit method. So I am going to discuss the first method today, and the second, third and the fourth method video I will upload tomorrow. So today I am going to discuss among the methods average profit method. Average profit method. Under this average profit method we have to learn simple average profit method and weightage average profit method. So average profit method, this is the very simple and widely followed method of the valuation of goodwill. In this method, goodwill is calculated on the basis of the number of years of a profit. Average of such profit is multiplied by the agreed number of the years, such as 2 years or the 3 years, to find out the value of goodwill. Thus, the formula is, if we have to calculate the formula by the simple average profit method, goodwill, if we have to calculate the goodwill by this method, इस particular topic में हमें goodwill calculate करना सीखना है बस. So goodwill equals to average profit multiply by number of परचेज ईयर. कितने ईयर के लिए हम लोग गुडविल, कितने ईयर का गुडविल खरीद रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर. सो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एवरेज प्रॉफिट. अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेट लाइक दिस. ये तुम लोगों ने पहले भी मैथ्स वैस में पढ़ा हुआ है. एवरेज प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड. जैसे मैंने तुम्हें कहा कि 5 साल की गुडविल प्रॉफिट दे दिया एंड यू कैलकुलेटेड द गुडविल ऑफ द फर्म. सो हमने क्या किया, जैसे मैंने तुम्हें 5 ईयर का प्रॉफिट दे दिया, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है 1000 रुपये, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट दे दिया 2000 रुपये, थर्ड ईयर में प्रॉफिट दे दिया 2000 रुपये, और फोर्थ ईयर में दे दिया प्रॉफिट 2000 रुपये, फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट दे दिया 1000 रुपये. तो ये मैंने 5 साल के तुम्हें प्रॉफिट दे दिया. अब अगर इसका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगी, आई विल एड ऑल द प्रॉफिट एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5. तो मैंने यहाँ पे ले लिया. एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 1000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 5. सो ये हो गया 4 5 6 7 8 9000. इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, 2000. सो दैट बिकम्स 10,000. तो 10,000 तुम्हारी टोटल प्रॉफिट हो गई एंड आई विल डिवाइड बाय द 5 नंबर ऑफ ईयर्स 5, दैट इक्वल्स टू 2000. तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट वी हैड कैलकुलेटेड 2000 रुपीज. तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट,
द नंबर ऑफ ईयर्स विच इज गिवन टू अस, उसको मैंने ऐड किया एंड आई डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. जैसे इन गिवन क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में हमारी जो प्रॉफिट थी वो 2000 की थी, सेकेंड ईयर में 2000 की थी, थर्ड ईयर में भी 2000 की थी, फोर्थ ईयर में 2000 की थी, फिफ्थ ईयर में 1000 की थी. तो टोटल प्रॉफिट हो गया 10,000 एंड दिस 10,000 को आई डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 1 2 3 4 5. सो आई डिवाइडेड बाय द 5 एंड हेंस आई गॉट व्हाट? एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट that is very simply and widely followed in the valuation of goodwill. So this way we'll calculate the average profit. Number of purchase year क्वेश्चन में दिया रहता है. If it is not given in the question, then जितने भी ईयर आपको दिया है उसका हाफ कर दो. जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 साल दिए तो 5 साल का हाफ क्या हो गया? 2.5. तो ये हम तभी अप्लाई करते हैं when the number of purchase year is not given in the question. Like in this question, number of purchase year is given and the purchase year is given how much? Suppose it is given 2-year purchase. 2 साल की परचेज ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग. तो हमने यहाँ पे निकाला गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर. सो गुडविल इक्वल्स टू average profit, how much we had calculated? 2000. And the number of purchase year, how much we had how much given in the question? 2 years. So it will be multiplied by the 2. So the goodwill comes 4000. So if anyone asks you ki what is the goodwill of the firm, so you will say 4000 is the goodwill of firm. So this way we'll calculate valuation of goodwill by average profit method. So when we will calculate the average profit का मतलब होता है that is average normal profit. तो जब भी हम average normal profit को लेंगे तो we have to keep in mind कि हम number of years को number of profit को जब number of years से जब हम divide करते तो जो भी profit हम ले रहे हैं, numbers of years की जो profits ले रहे हैं, that profit must be normal profit of the business. उसमें किसी भी तरीके का abnormal loss हमने पे नहीं किया हो या फिर कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हमने ऐड नहीं किया होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन ओनली ऑल द नॉर्मल प्रॉफिट यू टेक इट, एड इट एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. अब नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस होता है जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया. तो अगर हमने इसको अपने बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट से पे किया है तो हमको वापस इसको ऐड कर लेना है. क्यों ऐड करना है? क्योंकि अगर हम एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल प्रॉफिट से पे करेंगे तो दैट इज हमारे पास बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आएगी. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस को हमने नॉर्मल प्रॉफिट से पे कर दिया है तो उसको हम लोग वापस ऐड कर लेंगे. इसी तरीके से बिजनेस में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी होते हैं. जैसे लॉटरी से हमको बेनिफिट हो गया या सट्टेबाजी से हमको प्रॉफिट हो गया या कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया था बहुत साल पहले, उससे अचानक कोई पैसा मिल गया या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से हमको पैसा मिल गया. तो ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के प्रॉफिट में नहीं आते हैं. तो इनको क्या करेंगे हम लोग? अगर हमने इनको गलती से ऐड कर लिया अपने नॉर्मल प्रॉफिट में तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे. तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस. तो इसको मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सी. तो एवरेज प्रॉफिट मीन्स एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट. And how we will calculate the average normal profit? Average normal profit can be calculated from this. We will add abnormal loss. अगर कोई भी abnormal loss को हमने अगर normal profit से पे कर दिया तो उसको वापस हमें ऐड बैक कर देना है. अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर.
अगर उनको हमने इसमें से पे कर दिया तो उसको वापस हमें क्या करना है, ऐड बैक करना है. देन वी हैव टू डिडक्ट ऑल दी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. अब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मैंने तुम्हें बताया. एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे कि एबनॉर्मल गेन हो गया, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट से हमको पैसा मिल गया, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या फिर हमने सट्टेबाजी या फिर लॉटरी से अगर हमको किसी भी तरीके का अगर इनकम हो गया, तो उस इनकम को हम लोग अपने बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ इनकम नहीं बोलेंगे, तो इसलिए उसको वहां से डिडक्ट कर देंगे. एंड देन वॉट एवर वी विल गेट आफ्टरवर्ड्स दैट विल कॉल्ड इट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट. उसको हम लोग एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे. एंड दिस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से तो हमको मिल जाएगा गुडविल. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते. लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, कि ए परचेज्ड बी बिजनेस. ए ने बी का बिजनेस परचेज कर लिया. बिजनेस विथ effect from 1st April 2019. It was agreed that the firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years. 3 साल की प्रॉफिट दिया है. लास्ट 3 years profit, last 3 years the profit of B business for last 3 years ended 31st March were 2017 रुपीज़ 1 लाख, और ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज़ 10,000. यानी कि 2017 में जो प्रॉफिट हुआ था वो 1 लाख का हुआ था, जिसमें 10,000 रुपये का एबनॉर्मल गेन एडेड है. देन 2018 में भी रुपीज़ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ 20,000. अब 20,000 एबनॉर्मल लॉस पे करने के बाद फर्म की जो प्रॉफिट थी 2018 में 1 लाख की थी. अब तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. सभी प्रॉफिट जो है, कोई भी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. प्रॉफिट है बट दे आर नॉट द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट. किसी में कोई एबनॉर्मल लॉस पे कर दिया है, कहीं पे एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर दिया है. नाउ सी इन 2019 85,000 का प्रॉफिट है, एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट.
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट हमने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल के लिए। अब वो प्रॉफिट अचानक तुमको मिल गया तो वो तुम्हारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का तो है नहीं, लेकिन 85,000 में हमने वो 5,000 रुपये को भी ऐड किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल हमें निकालनी है, तो लेट अस कैलकुलेट द फर्म की गुडविल। अब नाउ सो लेट अस डू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। सॉल्यूशन नाउ फर्स्टली 2017 में प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज़ एंड इन दैट प्रॉफिट 10,000 रुपये हमारा जो था वो एबनॉर्मल गेन था, तो दैट 10,000 वी विल डिडक्ट। सो फ्रॉम द 1 lakh व्हेन 10,000 विल बी डिडक्ट, then your normal profit you will get, and the normal profit you will get 90,000. Similarly in 2018 your profit is 1,10,000 1,10,000 की प्रॉफिट थी, ये यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट 1,10,000 कर लेते हैं। सो द प्रॉफिट इज 1,10,000 और हमने क्या किया था, उसमें से 20,000 का एबनॉर्मल लॉस पे कर दिया था। नाउ दैट 20,000 रुपीज़ विल बी एड बैक, क्योंकि हम कभी भी अपने नॉर्मल प्रॉफिट से एबनॉर्मल लॉसेस को पे नहीं करते हैं। सो इफ़ आई वांटेड टू नो द एवरेज प्रॉफिट, मैं इसको वापस ऐड कर दूंगी एंड नाउ द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विल बी 1,30,000। सिमिलरली इन 2019 हमने एक इंटरेस्ट को इंक्लूड किया था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को 5,000, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन 85,000 माइनस 5,000 कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, देन इट विल बिकम, नॉर्मल प्रॉफिट विल बिकम 80,000. Now you can see in actually the normal profit in 2017 is 90,000. Then in 2018 it is 1,30,000 and in 2019 it is 80,000. Let us add the total profit of the 3 years. Let us find out the total profit of 3 years. तो मैंने ये सारे normal profit को add कर दिया. I will get 3 lakh rupees. So what I got after adding all the normal profit of the 3 years, I got the total profit of the 3 years. Let us take in the formula. Formula is what for calculating goodwill? Goodwill calculate करने का formula होता है goodwill equals to average profit multiply by number of purchase year. Now purchase year is already given in the question and the number of purchase year is given in the question is how much? That is 2 years. So let us put in the formula. So for putting the formula, number 1 we have to calculate the average profit. So average profit का formula क्या था? Total profit of the number of years divided by the numbers of year. Total profit of number of years divided by number of ईयर, यही इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट. अब इसको पुट कर देते हैं इसमें से. तो टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years हमने निकाला हाउ मच? 3 लाख रुपीज़ एंड द नंबर ऑफ ईयर इज 3. सो द एवरेज प्रॉफिट वी विल गेट 1 लाख. 1 लाख रुपए तुम्हारी एवरेज प्रॉफिट आ गई. अब गुडविल निकाल लेते हैं. फॉर्मूला हमें पहले ही मालूम है, गुडविल इक्वल्स टू AP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर. तो गुडविल हो गया 1 लाख रुपए multiply by number of purchase year 2. So the firm's goodwill we will get 2 lakh rupees. So this is the goodwill of the firm. So this way we will calculate the goodwill by a average profit method. That is a simple average profit method.